Hello class 10. Again I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class at present we are studying chapter number 1, that is life process. What are life processes? I have already explained in previous online class. In life process, in your book, the first heading is nutrition. Nutrition may be of two types: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Of course, autotrophic mode of nutrition is held in green plants because green plants contains a magic pigment which is known as chlorophyll, with the help of which all green plants are able to prepare their own food by themselves. Clear? About photosynthesis, I have already explained in your previous class, that is class 9. So there is, I think there is no need to tell you more about photosynthesis. But I want to recap one thing here, that in autotrophic mode of nutrition, photosynthetic and chemosynthetic, two types of organisms are found here. फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स और कीमोसिंथेटिक टाइप का एग्जाम्पल हो गया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और मिथाइलोजन बैक्टीरिया. ये कीमोसिंथेटिक का एग्जाम्पल हो गया. ग्रीन प्लांट्स आर हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट which is known as chlorophyll. Chlorophyll comes into a broad group which is known as plastids. Plastids are cytoplasmic organelles of plants. These plastids are of three types. Plastids are colored pigments. These may be of three types. First one is green in color, known as chlorophyll or chloroplast. Second one is except green, all color except green. They are known as chromophylls. Chromophylls are found in flowers. Because of presence of this chromophyle or chromoplast, flowers looks very bright in color because of presence of this chromoplast. And third one is white or transparent in color. Third plastid is white or transparent in color and known as leucoplast or leucophyll. Leucoplast is present in white flowers. जितने भी white flower आपके आसपास मिलेंगे उनमें ल्यूकोप्लास्ट होगा. ल्यूकोप्लास्ट के भीतर जो वैक्यूल्स होते हैं वो वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं और उनमें खास तरह का केमिकल फील्ड होता है फ्रेगरेंस का. इसी वजह से वाइट कलर के फ्लावर्स में फ्रेगरेंस अधिक होता है इन कंपैरिजन टू कलर्ड फ्लावर्स. कलर्ड फ्लावर्स के कंपैरिजन में वाइट फ्लावर्स में फ्रेगरेंस बहुत अधिक होता है. ठीक है. जबकि क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो फ्लावर्स कलर्ड होते हैं और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट के हर ग्रीन पार्ट में, मतलब लीव्स में भी. और अगर स्टेम ग्रीन है या ब्रांच ग्रीन है तो उसमें भी ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्लोरोफिल की हेल्प से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 और H2O, इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज बनाया जाता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 और H2O के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज बनता है. इसमें H2O की स्प्लिटिंग होती है, H2O का ब्रेकडाउन होता है और CO2 एज सच जुड़ जाता है, बन जाता है ग्लूकोज. एज यू नो क्लास दैट फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6.
And in case of plants, this glucose is stored in storage organ of plant in the form of starch. So glucose is stored in form of starch in plants. And because of presence of this starch, because of presence of this glucose, that part of the plant appears to be sweet. For example, in potato, starch is present. Because of this reason, potato contains starchy substance, it contains glucose. तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इसी वजह से पोटैटो प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। हाँ, इसमें ये H2O जो है ये तो रूट से आया। आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जो H2O है ये सॉइल से आया, रूट ने एब्जॉर्ब किया H2O और वो कंडक्टिव टिश्यू से कंडक्ट होकर पहुंचा लीव्स तक। कंडक्टिव टिश्यू मीन्स वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ये पहुंचा लीव्स में। CO2 कहाँ से आया? CO2 आया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लांट की बॉडी में कैसे पहुंचा? स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा का डायग्राम आप 9th में बहुत बढ़िया बना चुके हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये आज का होमवर्क है, आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में। मेक अ नीट, क्लीन एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। ये डायग्राम आपको आज बनाना है। ठीक है, और सेकेंड डायग्राम ये भी आपको ड्रॉ करना है। ये क्रोटॉन की लीव्स हैं। क्रोटॉन की लीव्स ऐसे ही होती हैं, कहीं पे ग्रीन होता है, कहीं पे येलो होता है, स्पॉटेड लीव्स होती है। जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है वहीं पे क्लोरोफिल होता है, इसलिए वही पार्ट खाली फूड प्रिपेयर करता है। इसको हम एक्टिविटी से जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करता है स्टोरेज ऑर्गन में। और प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन कुछ भी हो सकता है। इट मे बी फ्रूट, इट मे बी सीड, इट मे बी स्टेम। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ शुगर केन, इन केस ऑफ शुगर केन स्टेम इज द स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, इन लीव्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर, स्पिनच के केस में, कोरिएंडर के केस में प्लांट का प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल लीव्स में कलेक्ट होता है। ऐसे ही फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, सीड्स फॉर एग्जांपल मस्टर्ड तो ऑयल गिविंग प्लांट है, उसका जो फूड है यानी कि ऑयल वो ग्रेन में, ठीक है, स्टोर होता है। तो प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। फोटोसिंथेसिस, उसके बाद हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे और ट्रांसपिरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। We will study in later online classes about heterotrophic nutrition and nutrition in animals. Clear? This is all for today. Class, revise the topic, revise the topic photosynthesis, revise about plastics, revise about nutrition and autotrophic nutrition, and draw diagram. This is your homework for today. Stay home, be safe. Thank you, class time.